Assalamu alaikum to all of you. Is my voice coming to all of you? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Yesterday I kept handouts of three subjects of these both subjects in the department. Have you got them photocopied? Yes, sir. वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि it is better if you buy the books. Books have no substitute. Books have no, are always very important. लेकिन आप लोगों ने नहीं खरीदी किताबें. Unfortunately, that's why I had to provide you those handouts, and those handouts will also cost you, I think, 300 to 400 rupees minimum. इससे कम में तो होगा नहीं. उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा आपका. तो उसके अलावा भी अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको. रिमेंबर देयर वर टू sets related to poetry. One was related to Chaucer's prologue to the Canterbury Tales. Second was about the Fairy Queen. These are the two poems, or these are two writers. Sorry, uh, Spencer and Chaucer. And after this, there are two more, I think, writers we have to study, or two or three more poets we have to study. तो उनका मैं फिर आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा. Teaching of this for the subject of teaching of literature, I have provided you this book, and there is another book which I have already WhatsApp you. So that book is also available, and this one is also available. They both are available. I have already mentioned these things to you. अब हर एक के जो है वो हैंडआउट देना पॉसिबल नहीं होते बिकॉज इट ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट. So I today will talk about inshallah chapter number 12, that is about planning. Does anybody have any question regarding the previous lectures? Yes, does anybody have any question regarding previous lectures, or shall we proceed to the next one? हाँ. किसी को previous lectures के हवाले से कुछ पूछना हो तो पूछ सकता, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं. Yes, sir. Move ahead. So we should go ahead, right? So what is lesson planning? Planning क्या होती है by the way, ये बताएं. What is planning? Sir, prepare something before. So planning is something that is needed, required for everything, whatever we do in our life. If we don't plan, we don't do things in a proper manner. So what is planning? How do you define it? Yes, it is a very common question, and I think everyone knows, or everyone should tell how they plan or what is planning. By the way, Sir, While doing something, first of all, we make our mind that what we are going to do. These also are plannings. Means we make a plan that how we are going to do and what things we are going to do. yeah, while doing, not before doing. For example, you are living in a house, and now you have decided to, you know, build your house further. So what will you do? Definitely planning. Am I right or wrong? Yes, sir. You will do planning. Can we call contractors or cement
you know, all other material without planning? Can we have all these things without planning? आज आपने सोचा और कल आपने क्या किया, जाके ऑर्डर दे दिया, भाई एक ट्रक रेती है का ले आओ, रेती वाले को आपने बोल दिया 50-60 सीमेंट की बोरियां मंगवा ली और सब कुछ, कॉन्ट्रैक्टर को आपने मंगवा बुलवा लिया और कहा भाई शुरू कर दो काम। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे घर पे बैठकर फैमिली वालों के साथ, खास तौर पे about finances, that how much money do we need, and how much money do we have to spend, and how we have to do all such things. There will be lots of questions in our mind which we will try to answer, or we will try to find the answer to those questions. फिर इन सब को हम लोग जब कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे उस बारे में कि अब हमने अगला स्टेप क्या लेना है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है कि हम उन लोगों को बुलवाते हैं और उनकी राय लेते हैं और उनसे पूछते हैं और फिर जाके फाइनल करते हैं। ऐसे ही होता है ना भाई। ये मैंने एक जनरल सी मिसाल दी है। यस सर, ऐसा ही है। फिर हम ये भी सोचते हैं कि हम जो मकान बनाएंगे या जो भी हमने अपना जो प्लॉट है इसको उसके पर बिल्डिंग तामीर करनी, तो उसमें कितने कमरे होने चाहिए, कौन सा कमरा किस जगह पे होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचने के बाद राय लेते हैं, एंड देन वी फाइनलाइज इट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ऐसे ही ना, या और भी कुछ होता है जो जहन में होता है हमारे? जल्दी बताएं। यू आर डूइंग एम ए इंग्लिश, आप लोग एम ए इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी भी प्लानिंग होगी मेरे ख्याल से, या विदाउट प्लानिंग बीएस में दाखिला ले लिया था? जल्दी बताएं। यस सर, ऑफ कोर्स है। आपने प्लानिंग की थी? सही से बताएगा, टेल मी द ट्रुथ, बिकॉज आई हैव आस्क्ड मेनी स्टूडेंट्स एंड फाउंड दैट मेनी डिड नॉट प्लान फॉर इट, दे जस्ट एक्सीडेंटली टुक एडमिशन। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जो एक्सीडेंटली किसी भी फैकल्टी को चूज़ कर लेते हैं और बाद में जाके वहाँ पे बेचारे वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे आ जाते हैं और बाद में उनको चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ तो लिटरेचर भी पढ़ना है, यहाँ तो ये भी पोइट्री भी पढ़नी है, यहाँ तो पता नहीं क्या, वो समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, Absolutely right, sir. इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है एमए जो डायरेक्टली एमए में दाखिला ले रहा होता है। बीएस वाले पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उनको करवा दिया जाता है। They are offered some courses in the beginning, it's like English compulsory, functional English, and introduction to literature, and certain courses they are offered, so they have some base. But those who directly get enrolled for MA, तो उनके साथ ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो या तो बहुत से उनमें बीएससी करके आ रहे होते हैं, बीकॉम करके आ रहे होते हैं, और टोटली डिफरेंट होता है। और जब बात आती है स्पेशलाइजेशन की, तब वो एमए इंग्लिश में आ जाते हैं और टोटली अलग दुनिया उनके लिए होती है। सो लैक ऑफ प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ प्लानिंग। Am I right or wrong? यस सर, यू आर राइट। ठीक है, तो प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग। इसी तरह टीचर के लिए भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। इफ टीचर डजंट प्लान व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, then what will happen? He will not be able to teach things in a proper manner, and students will not be satisfied from the teacher, and there will be no satisfaction level। और ये तो मैं ये भी समझता हूँ कि टीचर ने अपनी जो रोजी है वो भी जो है हलाल नहीं की, मतलब वो हलाल करने के लिए उसे मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी जाके कुछ पढ़ा दिया। हाँ, वो अलग बात है, कुछ टीचर्स की एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा होती है कि वो कर, लेकिन फिर भी प्लानिंग की जरूरत लाजमी पड़ती है। सो व्हाट इज लेसन प्लानिंग? Lesson planning means we have to plan out our lesson in a very proper manner, and this is something very important in teaching, but here we are talking about in language teaching, English language teaching, ELT। तो इसमें तो और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। as you know it very well that ELT is different from others। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज की क्लास में if there are 20 students, so these all 20 are maybe different from each other, their goals are different, their mindsets are different, their background knowledge is different, and there may be many other things। So as a teacher we have to keep all these things in our mind। आप कोचिंग सेंटर की मैंने आपको मिसाल दी कि स्टूडेंट जाता है तो उसको पता है 2 साल मैंने हर सूरत यहाँ गुजारना है, क्योंकि मुझे पेपर अपने अच्छे नंबर से पास करने हैं। स्कूल में वो एक तवील अरसा वो स्टूडेंट गुजारता है, कॉलेज का भी यही हाल है। यूनिवर्सिटी में आप आए तो यहाँ पे आपका कोई एक नहीं, आपके पास बहुत सारे और भी टारगेट्स हैं। बट व्हेन यू गो टू अ लैंग्वेज सेंटर और व्हेन यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, so over there they have only one target, and what is that target? Their target is to enable you to speak English
यही ना। अब यहाँ पे जो है स्पेसिफिक हो गया टारगेट, थोड़ी सी गलती करेंगे, लैक ऑफ प्लानिंग होगी तो क्या होगा कि स्टूडेंट छोड़ देगा या चला जाएगा, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसान होता है, और इसके अलावा आपका अपना भी ये फेलियर है, और स्टूडेंट नहीं सीखेगा तो ये भी फेलियर है। सो लेसन प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? Now you Yes, can sir. see here, planning is what? Planning is the act or process. This is what you have in your book as well. तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि planning is the act or process of making plans for something. Here it means the act or process of making plans for teaching students in a classroom. Teaching students English in a classroom. So there is a great variety in the amount of time that different teachers devote to planning their lesson and the ways in which they do. Some teachers, spend much time on planning their lessons. Some teachers spend less time, but some spend no time. Some teachers even make no plan. Or many teachers, normally those who are not professional teaching में भी आपको professional और non professional बहुत मिलेंगे। तो जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं उनको लेसन प्लानिंग का इतना पता नहीं होता, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे नो वेरी वेल अबाउट प्लानिंग, सो दे स्पेंड टाइम ऑन प्लानिंग. Some, for example, will be carrying as they walk down the corridor detailed plan, saying exactly what they hope will happen. और सोचते हैं कि यार जो हमने सोचा वही हो जाएगा. हाउ लॉन्ग एवरीथिंग विल टेक एंड व्हाट टीचिंग एड विल बी यूज. ये सब चीज़ें उनके जहन में होती है कि क्या क्या हमने करना है क्या नहीं करना है. Others will have a few ideas on their tablets. कुछ के पास कंप्यूटर लैपटॉप या टैबलेट में कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं. Perhaps with links to internet site they can click onto when they hook their tablet up to a data project or interactive whiteboard. कुछ के पास मोबाइल फ़ोन में उन्होंने अपना प्लानर रखा होता है कि अब हमने ये करवाना है वो करवाना है. Still others won't have anything written down, और बहुत से के पास written writing में कुछ नहीं होता, but will have a good idea in their heads of what they and the student will be doing. तो बहुत से ऐसे होते हैं जो राइटिंग में उनके पास प्लान नहीं होता, लेकिन सिर्फ जहन में उनके होता है कि ये हमने करवाना है वो हमने करवाना है. लेकिन जो बेहतर तरीकाकार है वो ये है कि वन मस्ट हैव his or her plan in written form. What do you say about this? Should we have a plan in written form, or should we have a plan in only head in our head? Yes, sir. The Of course, written in a form written is far form, better. it's better. राइटिंग के बारे में तो ये कहा जाता है, इफ़ यू वांट टू मेक आवर मेमोरी शार्प. बहुत से लोग भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो कहा जाता है कि अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं और अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिखने की आदत डाल लें. जो काम आपने करना है उसको आप लिख लें डायरी में. जो काम कर लिया उसको भी आप लिखने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी. आपने देखा होगा ना, घर से निकलते वक्त बहुत सी चीज़ें जहन में होती है, लेकिन निकलते वक्त हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं. एंड व्हेन वी रीच आवर डेस्टिनेशन वी रियलाइज, ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट दिस थिंग, मैं ये भूल गया वो भूल गया. क्यों? प्लानिंग नहीं थी. आपने उसको लिख के नहीं रखा. आप प्लान कर लें कि कल के दिन मैंने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ जाना है, तो उसको आप पहले से प्लान कर लें. ठीक है. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ. तो मोटरसाइकिल के बाज़ औक़ात लाइट्स ख़राब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात इंडिकेटर्स जो है वो सही काम नहीं कर रहे होते, और भी चीज़ें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं विच आर वेरी डेंजरस फॉर अस. फॉर एग्जांपल, अगर हेडलाइट ख़राब हो जाती है तो वो हेडलाइट जो है अब दिन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन जब रात में आप गाड़ी चलाएंगे तो कितना मसला होता है कि नहीं. रात में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या नहीं पड़ती? हरी अब जवाब नहीं आया. यस सर. होती ना भाई, रात में अंधेरे में चलाते हो पता चलता है कि यार हेडलाइट की अहमियत क्या है. बैक लाइट की और हेडलाइट की, क्योंकि बैक लाइट अगर आपके पास ना हो तो कोई पीछे से आपको हिट कर सकता है. हेडलाइट ना हो तो आगे आपको पता नहीं कुछ भी हो सकता है. सो वी नो और वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस व्हेन देयर इज नो लाइट रात में. तो क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो यार आज हम कल हम इसको ठीक करवा लेंगे. फिर कल आता है किसी और काम में लग जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, हम फिर उसको सोचते हैं कि ये करवा लेंगे, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें उसकी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है. फिर हम सोचते हैं कि काश ये मैं करवा लेता तो आज इतने बड़े नुकसान से बच जाता.
कुछ लोग ऑयल चेंज नहीं करवाते, तो क्या होता है, उनका इंजन सीज हो जाता है, फिर बाद में वो हज़ारों रुपये भर रहे होते हैं। वो काम जो 300-400 में या 500-600 में हो रहा था, थोड़ा टाइम निकालना था प्लानिंग के साथ, वो हमने नहीं किया, और बाद में हमने पूरा पूरा दिन दे दिया, 2-2 दिन दे दिए उस काम को, और हज़ारों रुपये दे दिए। So lack of planning creates lots of problems in our everyday life. And when we teach, or when if we are teacher, then of course if we have no lesson planning, or if we don't plan out our lessons, so we face many problems. So teacher के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो जब क्लास रूम में दाखिल होता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाया था, परसों क्या पढ़ाया था, और इस वीक में मैंने क्या पढ़ाना है। ऐसा कुछ ना हो कि मैंने जो पिछले वीक में पढ़ाया वो रिपीट हो रहा हो, रिपीट कर दूँ इसमें। ये ऐसा भी ना हो कि अभी मैं क्लास 50 मिनट की क्लास है या 45 मिनट की क्लास है, मैंने एक चीज़ पढ़ाई जो 30 मिनट में ख़त्म होगी या 35 मिनट में ख़त्म होगी, अब मेरे पास है 15 मिनट। इन 15 मिनट्स में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ करवानी जो 15 मिनट में ही ख़त्म हो। ऐसा ना हो मैं बगैर प्लानिंग के करवा दूँ और वो 15 मिनट की जगह 25 मिनट में ख़त्म हो, स्टूडेंट्स की जो 10 मिनट की ब्रेक का टाइम है वो भी मैं ले लूँ। अब अगली क्लास में तो स्टूडेंट्स को टाइम पर जाना होगा ना, वहाँ लेट जाएंगे तो उनको वहाँ पे मतलब ये कि तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, वो टीचर भी परेशान होगा। कितनी प्रॉब्लम्स है, इफ़ यू डोंट फिनिश आवर क्लास ऑन टाइम देन वी स्टूडेंट्स विल फेस प्रॉब्लम, टीचर विल फेस प्रॉब्लम। सो हाउ वी कैन डू दिस थिंग व्हेन वी हैव प्लानिंग, जब हमारे पास एक प्रॉपर रिटन प्लान होगा, देन वी उस प्लानिंग का में ये सब चीज़ें शामिल होती है कि आपने क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और कितना वक्त देना है उसको। ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्लानिंग। तो ये आप अपने रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने ऊपर भी कर सकते हैं, और एज अ टीचर ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट। एनी क्वेश्चन? ये सब याद रखिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनमें कोई ऐसी थियोरेटिकल चीज़ नहीं है कि जो हमारे लाइफ से ऐड करें। Occasionally, though, teachers arrive at the door of the classroom with very little idea of what they want their students to achieve. ये अमूमन होता है, and as a result run the risk of an unfocused lesson, और फिर वो लेसन पर जाके फोकस करता है जो कि फोकस नहीं करते, which may demonstrate to the learners that they have not taken the time to think carefully about the needs of their class, और learners को भी पता चल जाता है कि टीचर जो है तैयारी के साथ नहीं आया था। At its worst, such a lack of planning can lead to poorly organized and unsuccessful lessons, और इस तरह से क्या होता है कि poorly organized और unsuccessful lessons जो है वो सामने आते हैं, and sometimes as a consequence of this disruptive behavior on the part of the students, और कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स उसको रिएक्ट भी करते हैं। So planning is very important. Now, as I've told you that planning is good. If we plan out things, it is very good. So it is thought to be good because it help us. क्यों ये अच्छा? क्योंकि it help us to decide, especially in school setting with large classes, or in university, we also have large classes. What we are going to do? हमने करना क्या है? It is also good because students appreciate knowing that their teacher has thought carefully about what would be best for them, और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, और अगर वैसे टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो उनके लिए कोई माना नहीं रखता। तो इस तरह दोनों तरह के स्टूडेंट्स हर जगह मिलते हैं। एवरीवेयर वी फाइंड गुड एंड गुड स्टूडेंट एंड दोज हु आर नॉट सीरियस विद देयर स्टडीज। लेकिन ओवर zealous प्लानिंग एंड स्पेशली plans over zealous execution may be stultifying if we stuck rigidly to our plan। अच्छा, ऐसा भी ना हो कि हम अपने प्लान के साथ रिजिडली, यानी कि बिल्कुल सख्ती से उस पर अमल कर रहे हो। बाज़ औक़ात हम थोड़ा उसमें ऊंच नीच भी कर सकते हैं। कुछ मैजिक मोमेंट्स होते हैं कि हमने पढ़ाया कुछ हो लेकिन स्टूडेंट्स किसी और चीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो हमने उस टॉपिक को भी एडजस्ट करना होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त हम जो है बिल्कुल सख्ती से अपने प्लान पर अमल पैरा हो। सम टाइम वी हैव सम मैजिक मोमेंट, वी कैन गो बियॉन्ड आवर प्लान एज वेल। प्रपोजल फॉर एक्शन रादर देन रिजिड प्रोसीजर। तो प्लान के बारे में कहा जाता है कि प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि इट शुड बी अ प्रपोजल फॉर एक्शन। व्हाट डज इट मीन? बट हाउ डू यू सी दिस? आप इसको कैसे लेंगे? प्रपोजल फॉर एक्शन, हरी आप। Yes, come on, nothing is coming from you.
कोई जवाब नहीं आ रहा किसी की तरफ से, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन रिपीट करें। सर क्वेश्चन इफ या क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रपोजल फॉर एक्शन, व्हाट डज इट मीन? प्लानिंग शुड बी अ प्रपोजल फॉर एक्शन, नॉट रिजिड प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि रिजिड मतलब होता है बहुत टफ प्रोसीजर एक है, उसको रिजिड कहते हैं, जिस पे आप रूल्स और रेगुलेशन को आपने फुल इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और प्रपोजल फॉर एक्शन यानी कि एक प्रपोजल है एक्शन के, इस तरह का काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि planning should be a proposal for action, not rigid procedure. So how do you see this? It might be better to view a lesson plan as a proposal for action, rather than as a rigid procedure. तो मैंने अभी आपसे कहा था रिजिड प्रोसीजर ना हो, यानी कि ऐसा प्रोसीजर ना हो जो कि वो रिजिड हो, टफ सा हो, जिसको आप करें तो आपको मतलब बोरियस ही हो रही हो, ऐसा ना हो। बल्कि वो ऐसा प्रपोजल हो कि जिस ऑफ फॉर एक्शन हो कि आपको मजा आए करने में। बात समझ में आ रही है? प्रपोजल से मुराद यहाँ पर एक किस्म का सजेशन होता है कि आप किसी को बता रहे हैं कि यार ये काम होना करें और उसको करने में मजा भी आ रहा हो। ये ना हो कि रिजिड प्रोसीजर हो कि आप कर तो रहे लेकिन मजा नहीं आ रहा, बस ऐसी हो रहा है बस किसी। तो उन्होंने कहा आप प्लान करें और उस प्लान को ऐसा करें कि उसको करने में स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हों। ऐसा ना हो कि आप वो आपने प्लान जो चीज़ की है वो स्टूडेंट करते रहा लेकिन मजबूरी से करे, तो मजबूरी से तो लर्निंग नहीं होगी ना फिर। So in this way, we are much more likely to serve the needs of the student in front of us than if we slavishly follow a procedure which does not quite work as it should. तो स्टूडेंट्स की जो नीड्स है वो इस तरह से पूरी होगी बजाय इसके कि हम सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करें। So there has to be a trade-off between the plan itself and the action we take. If we plan too assiduously, we may restrict our ability to improvise. But if we don't plan enough, we may not know where we want our students to go. तो अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम है, और अगर हम बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं देंगे प्लान पर, प्लानिंग पर, तो डेफिनेटली वी देन वी विल हैव नो पाथ, हम किसी भी जगह जा सकते हैं। मतलब ये कि कुछ भी पढ़ा दें हम और फिर उसका हमारे पास कोई रिजल्ट खास ना हो। सो दैट इज़ वाई प्लानिंग और प्लान शुड बी अ प्रपोजल फॉर एक्शन, नॉट अ रिजिड प्रोसीजर। बात समझ आई? प्रपोजल फॉर एक्शन और रिजिड प्रोसीजर। यस सर। याद रखिएगा आने वाले दिनों में मैंने आपको देना है लेसन प्लानिंग के हवाले से, और ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि हम सर ने क्या क्या बताया था। सर ने बताया था कि ये रिजिड प्रोसीजर ना हो। सर ने हमें यही बताया था कि इसमें हमने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट का तो आप सबको ही पता है कि टाइम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी वे ऑफ लाइफ। आप अपने एग्जाम्स की मिसाल ले लें, जब आप एग्जाम्स में पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम की वजह से आपको कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैनी स्टूडेंट डोंट मैनेज टाइम, आखिर तक लगे रहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं सर टाइम दे, हालांकि वो पेपर डिज़ाइन ही उतने टाइम में के लिए हुआ है। तो टाइम को अगर आप बाकी एग्जाम्स में देख लें, आप जितना घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का पेपर होगा तो आपने 2 घंटे में ही करना है, भले आप एक सवाल करें या 5 करें, करना 2 घंटे में। तो जो उस टाइम को लेके चलते हैं साथ साथ, सो दे सक्सीड, अदरवाइज प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें आपने फिर करनी होगी, फिर आपने उस लेसन को प्लान करके मुझे बताना होगा, और वो आपके असाइनमेंट का हिस्सा होगा। 10 नंबर का हो सकता है आपका असाइनमेंट हो, ऐसा से कुछ होती है। सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में दूंगा आपको, और दिस विल डेफिनेटली बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। याद रखिएगा आपके 50 नंबर जो है वो इस तरह से कवर होंगे, जिसमें प्रेजेंटेशन होगी, असाइनमेंट होगी, और 25 नंबर का आपके पास होगा क्या कहते हैं, मिड टर्म होगा, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, एंड यू हैव टू राइट देयर शॉर्ट आंसर्स, एंड देयर विल बी 5 मार्क्स फॉर योर regularity, punctuality and all such things. Is this clear to all of you? यस सर। यस ठीक है, सर। तो आपके जो 50 मार्क्स हैं वो इस तरह से कवर होंगे। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू डू ऑल सच थिंग्स। सो हाउ टू प्रिपेयर एक्टिविटी इन लेसन प्लानिंग। तो हर स्टूडेंट को, मतलब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें दूंगा फॉर देयर असाइनमेंट। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करवा के जान छुड़ा लेगा, स्टूडेंट से बाकायदा पूछताछ भी होगी। इस दफ़ा हमें सख्ती से कहा गया कि सर वी हैव ऑल द थिंग्स
midterm and all such thing physically, or you have to conduct their viva as well. ये सब चीज़ें होंगी क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है बनाता कोई और है और शेयर दो तीन कर देते हैं, या प्लेजराइज एक दूसरे का देख देख के करते हैं, तो एक मेहनत करता है, बाकी सब उससे मेहनत से फ़ायदा उठाते हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग रॉन्ग थिंग. थिंकिंग अबाउट लेसन्स, ये चीज़ें हमारे पास है जिनको हमें देखना है. टीचर डू नॉट प्लान लेसन इन अ वैक्यूम. इन अ वैक्यूम मीन्स सेपरेटली. ऐसा नहीं कि हमने सेपरेटली, यानी कि वी डोंट नो अबाउट द क्लासरूम साइज. क्लास का साइज हमें पता नहीं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें उसका नहीं पता. वी डोंट नो अबाउट क्लास, वी डोंट नो अबाउट कॉन्टेक्स्ट, हमें कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, हमने लेसन प्लान कर दिया. आर यू गेटिंग मी? सो इट्स नॉट लाइक दिस. मैं अगर मिसाल के तौर पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, so my approach will be different. If I am teaching at a private school, my approach will be different. If I am teaching at a government school, my approach will be different. Similarly, if I am teaching English at a language center, my approach will be different. Everywhere I will change my approach, and with the approach I will also change my methodology. मैं अपने methods को भी change करूँगा, approach भी change होगी. अगर मैं डिफेंस से पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ अप्रोच अलग होगी. अगर मैं मिसाल के तौर पर सदर के किसी इलाके में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर अप्रोच डिफरेंट होगी. वाई? बिकॉज ऑल दिस आर द फैक्टर्स विच हैव टू बी टेकन सीरियसली. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट है, हु आर दे टीचिंग, आप किसको पढ़ा रहे हैं. आया वेदर यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लास, और यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, और यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स who are only coming to learn English. अब ये है कौन जिनको आप पढ़ा रहे हैं. नंबर टू, वेयर आर दे टीचिंग, वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो है पढ़ा कर रहे हैं. वेदर दे आर टीचिंग एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज सेंटर, वेयर दे आर. क्योंकि इंग्लिश तो सब जगह ही पढ़ाई जाती है ना. नंबर थ्री, व्हाट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी डू दे हैव. तो अब उनकी ये भी देखा जाएगा कि टीचर्स के पास कौन सा मटेरियल है और टेक्नोलॉजी है. बाज़ जगहों पर हमें कोर्स बुक दी जाती है, कहा जाता है कि ये बुक है जिसको आप फॉलो करेंगे, और उनकी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें दी जाती है. फॉर एग्जांपल, आई हैव टॉट एट अ लैंग्वेज सेंटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं एक लैंग्वेज सेंटर में पढ़ा चुका हूँ. वहाँ पे हमें जो है एक्टिविटीज़ दी जाती थी, एंड दे हैड लॉट्स ऑफ टीचिंग एड्स. दे हैड ऑडियो विजुअल सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम. उसके बावजूद हमें वहाँ पे अपनी चीज़ें भी हमसे कहा गया था कि आप अपनी भी कुछ चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं. एंड वी विल अप्रिशिएट यू इफ़ यू ब्रिंग समथिंग ऑन योर ओन एज वेल. अल्टीमेट एम यही है कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हो और उसको सीखने को मिले बस, और वो कुछ सीख के अच्छा खासा यहाँ से जाए. यानी वो जब सीख के जाएगा तो डेफिनेटली वो मुतमईन होगा. सो व्हाट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी डू दे हैव, ये भी आपको देखना होगा. सो व्हाट डू दे देमसेल्फ बिलीव अबाउट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस. What do they believe about the learning and teaching process? Is this clear? ये चार सवालात हैं which we have in our mind when we think about lessons. Does anybody have any question regarding these these four questions? Yes, hurry up. Sir, please explain the fourth one. Yeah, the fourth one is what do teachers believe about the learning and teaching process. टीचर का अपना क्या ज़हन है, क्या सोचता है कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस क्या है. फर्स्ट थिंग इज दैट हु आर दे टीचिंग, हु आर टीचर्स टीचिंग, टीचर्स किनको पढ़ा रहे हैं. नंबर टू, वेयर आर दे टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहे हैं. नंबर थ्री, व्हाट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी डू दे हैव, उनके पास कौन सा मटेरियल और टेक्नोलॉजी उनके पास इस वक्त है. जैसे मिसाल पर मैंने आपसे कहा कि व्हेन आई वाज टीचिंग, अब जैसे यूनिवर्सिटी में हम टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो सम टाइम वी हैव projector, and sometimes we don't have projectors. So we in the university we don't have any course book, right? So we have to recommend you course books, and sometimes teachers have their own notes and handouts. For example, I provide you notes and handouts, but it is not like this that every teacher will provide you handouts and notes. ऐसा नहीं कि हर एक का अपना तरीका कार होता है. ठीक है, कुछ टीचर्स नोट्स हैंडआउट्स
के थ्रू ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कुछ टीचर जो होते हैं वो आपको पूरी रिकमेंड कर देंगे बुक्स, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको वर्बली बताते हैं, और कुछ आपको हो सकता है वेबसाइट बता देते होंगे। दीज आर डिफरेंट एड्स। एड्स मीन्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्प्स। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग क्लासरूम के अंदर मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जो है बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें शर्त ये होती है कि सबके पास एंड्रॉइड सेट हो, ऐसा सेट हो जो कि नेट से कनेक्टेड हो, उनके पास नेट भी हो। ये इसकी शर्त है जो कि हर अक्सर जगह पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत सी जगहों पे ये शर्त जो है पूरी नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास रूम के अंदर जो है एलईडी लगा हुआ, उस एलईडी का कनेक्शन इंटरनेट के साथ है, तो हमने नेट के ज़रिए डायरेक्ट स्टूडेंट्स को कुछ वीडियोस दिखा दी, और उसके ज़रिए स्टूडेंट्स की हम प्रैक्टिस दे रहे हैं, ठीक है। लिसनिंग की प्रैक्टिस दे रहे हैं, और इसके अलावा वी आर गिविंग देम सम अदर प्रैक्टिस। सो व्हाट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी डू दे हैव, वो कौन से मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी इनके पास इस वक्त मौजूद है। फोर्थ वन है क्या वो बिलीव डू व्हाट डू दे बिलीव, उनका क्या बिलीव है, उनका क्या मानना है अबाउट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में वो क्या अपना बिलीफ रखते हैं। तो ये आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर यू कैन सी हियर, ये सब आपको मैं कल दे चुका हूँ। लेट मी शो यू, बट बिफोर दिस लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। मैं आप लोग की अटेंडेंस फिलहाल ले लेता हूँ। डोंट से एनीथिंग एल्स, लेट मी जस्ट टेक द पिक्चर। स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कम है। आई डोंट नो व्हाई। आर बोथ द ग्रुप्स सिटिंग राइट नाउ? Are both sections sitting right now attending Yes, this sir. class? So 29 Yes, students are Yes, there. sir. There should be at least 50 40 तो होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। Your attendance is being marked. Okay. So now let me show you. ये आपके पास है चैप्टर जो मैंने आपको दिए। In here you can see can you see who the students are and what they need? लेसन प्लानिंग इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द सिलेबस डिज़ाइनर, जो उसको लेसन प्लान कर रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज आइटम्स इंटरलॉक, बट ऑल्सो ऑन आर परसेप्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि हमारा क्या परसेप्शन है और स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरत है, इस पर भी डिपेंड करता है लेसन प्लानिंग। If we are working in one-to-one teaching, we have the advantage that we can design a program of study based entirely on one student's needs and learning preferences. ये होता है normally home tuitions वगैरह में, and as we have seen, this may be an ideal situation for what has been called unplugged teaching. So this is the case when we have one tuitions normally, not home tuition. We can do this by asking the student what he or she wants or expect from the lesson, and we can then modify what we had, और फिर हम उससे modify उसमें changes वगैरह कर सकते हैं। It is more difficult to ascertain what all the different individuals in a class or indeed a whole student population want, although self-evaluation descriptors such as the can-do statements from the Council of Europe। तो यहाँ पे बात हो रही है जब हमारे पास क्लास होती है पूरी, उसमें ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हर एक से पूछे कि क्या आपको आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, लाइक दिस। सो हु द स्टूडेंट्स आर, कि स्टूडेंट्स कौन है आपके पास, एंड व्हाट दे नीड, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हेन वर्किंग इन अ क्लासरूम सेटिंग, मेनी टीचर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट अ नीड्स एनालिसिस टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स हाउ टू अचीव। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीड एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। नीड एनालिसिस मीन्स उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश,
व्हाट इज़ देयर पर्पस बिहाइंड लर्निंग इंग्लिश, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब पता चला कोई बिजनेस के लिए अंग्रेजी सीख रहा है, तो उसको आपने उस लिहाज से एक्टिविटीज़ करवानी है। अब बिजनेस मैन को या द पर्सन हु इज़ लर्निंग इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पस, यू विल नॉट गिव एक्टिविटी of sportsman and some other, you will try to give him activities which are related to business, ताकि उसकी vocabulary भी improve हो और दीगर चीज़ें भी improve हो। Of course, in most large education system, curriculums and syllabuses are designed to cater for a much larger number of learners, and this can make it difficult to take the needs of individual learners into account. तो एक बड़े पैमाने पर इसको तैयार किया जाता है, और जहाँ पे ज़ाहिर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड टू गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। फिर बता रहे हैं कि द मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल, इसको भी आप देख लीजिएगा वो कौन सी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, उनको देखना पड़ता है। इफ़ दे आर अवेलेबल गुड, इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल देन टीचर हैव टू गो फॉर अदर्स एंड अकॉर्डिंग टू दो। अब मिसाल को मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं पहले ये चीज़ देखूंगा, डू वी हैव प्रोजेक्टर्स और दीज थिंग्स और नॉट। इफ यू डोंट हैव प्रोजेक्टर देन आई विल चेंज माई स्ट्रेटजी एंड आई विल देन टेल यू दैट आई विल टेक ए प्रेजेंटेशन इन दिस वे। तो आप उस लिहाज से तैयारी करेंगे तो मेरी प्लानिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी और टीचर की प्लानिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। टीचर्स बिलीव्स, अप्रोचेस एंड मेथड्स, ये वही है लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग काइंडली पढ़ लीजिएगा। एंड these handouts have been given to you and I hope you must have obtained these handouts from the department. आप लोगों ने ले लिए हैं बस अभी तक खुद ही आप लोगों के पास ये हैंडआउट्स आएंगे। कोई रिस्पांस नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। एनी हाउ सर नहीं लिए, मंडे को लेंगे सर। मंडे को लेंगे तो ये भी एक बड़ा मसला है यार। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो दिया था कल कि मैंने कहा आज और कल में से करवा लीजिएगा ताकि आप लोग पढ़ें। एनी हाउ सर हमारे 2 दिन फिजिकल क्लास, 2 डेज फिजिकल क्लासेस होते हैं ना, मंडे ना ट्यूसडे ना, तो मंडे को हम जाएंगे तो फिर हम ले सकते हैं चलो ठीक है कोई बात क्योंकि नहीं। तो आप दिन में भी हमें मना है। ठीक है ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अभी आप लोग इसको अपनी पीडीएफ में भी दे सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग योर क्लास एंड नाउ इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट योर क्लास, आई विल स्टार्ट योर सेकंड सेशन ऑफ टुडे at 11:15, right? You have a break of 40 minutes, 45 minutes, so you can just go through whatever we have done. If you have any question you can ask me। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा अगला सिलेबस, उसमें डिज़ाइनिंग अ लेसन, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और यहीं से इसी से आपको वो बताया जाएगा। तो प्लीज़ you can just go through this chapter through your PDF version, okay? सर See you 11:40 11:40 not 11:15, 11:15 बजे, ओके ओके ओके। right? अल्लाह हाफ़िज़। सर अटेंडेंस ले ली मैंने, I have taken the picture of your participant list। ठीक है, इसमें आपके जो जितने भी आपने आपको उसमें ज्वाइन किया सब इसमें आ जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके ओके।